Good morning, student. Here we are learning chapter number 11, constructions, and it is part number 6. Now, from the construction number 11.3, let we solve some let we construct some construction from exercise number 11.2. For let, given in exercise number 11.2, example number question number 3, draw a circle of radius 3 centimeter. First, what we do? Uh, we draw a circle of radius 3 centimeter. Take 2 points. Take 2 points P and Q on one of its extended diameter. We are going to extend the diameter of radius 3 centimeter. One side, if we extend one side, then we put that point P, and if we extend another side, then we put point Q. We are going to extend the diameter each at the distance 7 centimeter. How many? 7 centimeter from its center. We extend diameter of the circle at the distance of 7 centimeter from its center. Draw tangents to the circle from these 2 points P and Q. So let first we draw the circle of 3 radius, then we extend the diameter 7 centimeter from its center, and we put point P, and if we extend the diameter on another side, then we put Q. And after then from the point P and Q, we draw the tangents to the circle, and let we do that. It's easy that we have doing. So let construction. First, we just draw circle of radius 3 centimeter. So here center O, just we take 3 centimeter radius and we draw circle, as you can see here. So its radius is 3 centimeter. For the given circle, its radius is 3 centimeter. Now first we draw the diameter of this circle. Here you can see that we have drawn the diameter of the circle. Now let we extend this diameter and put the point at distance 7 centimeter from its center. So let on LHS we extend the diameter. So it is distance 7 centimeter. So here it is distance 7 centimeter from its, distance 7 centimeter from its center. So we have extended its diameter outside, and we put the point P. Now we want to draw tangent to this circle, tangents to this circle. For that, as we do, what we do? We just find midpoint of this line segment PO. For that, what we do? Just we take the radius more than, जो यहाँ पे लाइन सेगमेंट पीओ दिया गया है उसके आधे से ज़्यादा की रेडियस लेके, आधा हम एज्यूम कर ले कि भी आधा इतना होता है, तो आधे से ज़्यादा इतना रेडियस लेके हम क्या करेंगे, पॉइंट पी पर जो कंपास होता है, जो राउंडर होता है, राउंडर का एक पॉइंट यहाँ पे रख के एक ऊपर की तरफ एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और फिर से पी को सेंटर लेके नीचे की तरफ एक आर्क ड्रॉ करेंगे। वैसे ही ओ को सेंटर लेके हम ऊपर की तरफ एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और ओ को सेंटर लेके फिर से नीचे की तरफ आर्क ड्रॉ करेंगे। कैसे? जैसे हम करते हैं फॉर फाइंडिंग द बाइसेक्टर ऑफ, और वी वांट टू बाइसेक्ट दिस line segment PO. Just we take the radius more than its half
of line segment. Just take center P and draw an arc, as well as it is a downside. Now about O, we just put one point of rounder on O and just draw an arc, as well as downside, downwards. Now let from this intersecting point of both the arcs, let we draw one bisector. So it is a perpendicular bisector to the given line segment. So and when this bisector and line segment intersects, its midpoint of line segment. So just we draw, and it is a M, and M is a midpoint of PO. We have just, you can see that we find the midpoint of this line segment. Now what we do, just we take OM radius, what we take OM radius, and we take center as a M. We just take radius OM and just take a center as a M and draw circle passing through this point P and O, such you can see here. Yes, this type of circle we can draw. Now as we do, now you can see that the circle that we have drawn is intersecting at 2 points at given this circle of 3 centimeter, radius of 3 centimeters, such here and here. So let just name them. It is A. So we draw the tangent to one line segment here. So PA is a tangent to the given circle, and also downward B, and we just draw tangent PB. So here from this side we have drawn the tangents to the given circle. As you can see that PA and PB are two tangents to this circle, of this circle. Now we can also extend the this diameter on RHS. Then we proceed as we do, just extend it point Q, and we find a bisector of OQ, we draw. Then it is say 7 centimeter from its center. So we want to draw, or we want to find the midpoint of OQ. So we just draw bisector of given line segment. So by this way we find the midpoint N. Now take ON as a radius and N as a center, then you can draw such a circle. And after then from Q, here you find 2 points as C, and we draw line segment as well as downward D. So by this way you can draw the tangent to the circle as given in the question. Now let we write the procedure of the construction, and also we write the steps of the construction, and after then we justify it. To justify, we know that it is circle and it is a half semicircle. It is a semicircle, and PAO. Once again, PAO. This angle is in the semicircle. It is angle of semicircle. Then it is always 90 degree. It is always 90 degree. So we can say that the given tangent is perpendicular to the given radius AO. Now let construction procedure. The tangent for the given circle can be constructed as follow. For that, just we follow these steps. Draw a circle with radius of 3 centimeter with
O as you do. Draw a diameter of circle and it extends 7 centimeter from the center and mark its P and Q. Both the side we can extend, as well as draw the perpendicular bisector of PO and mark the midpoint M. Draw a circle with M as center and MO as radius. Fifth step, now join the points PA and PB in which the circle with radius MO intersects the circle 3 centimeter, as you can see in the figure. Now PA and PB are the required tangents. Similarly, from the point Q we can draw the tangents. From that, QC and QD are the required tangents. Now let me just justify this statement. Justification, as we know that the construction of the given problem can be justified by proving PQ and PR are the tangent to the circle of radius 3 cm with center O. For that, just we have to show that PQ and PR is perpendicular. PQ and PR, or here we taken that PA and PR, PB, PA and PB. Here not we taken. We have not taken PQ and PR, we have taken PA and PB. PA and PB are tangents to the circle of 3 radius with the center O. To prove this, join OA and OB. What is OA and OB? OA and OB are radius of the given circle of 3 centimeter. From the construction, angle PAO is an angle in the semicircle. As I said, what is angle PAO is an angle in the semicircle. We know that the angle in semicircle is right angle, so it becomes angle PAO is equal to 90 degree, such that what we can say that OA is perpendicular to PA. That we want to prove. हमें क्या प्रूव करना है कि जो टेंजेंट है वो रेडियस को परपेंडिकुलर है, वो हम प्रूव कर दे तो हम यहाँ पे जो जस्टिफिकेशन है वो हो जाएगा. तो यहाँ पे justification हो गया. Similarly, since OA is a radius of the circle with radius 3 centimeter, PA must be a tangent of the circle. Similarly, we can prove for that PB, QC and QD are the tangent of the circle. Hence, the justified. As well as we have justified OA perpendicular to PA, OA perpendicular to PA. Then we also can prove it for PB, QC and QD. That are the tangent of the circle. Now let question number 4. Draw a pair of tangents to a circle. Draw a pair of tangents to a circle of radius 5 centimeter, which are inclined to each other at an angle of 60 degree. तो यहाँ पे हमें 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है और सर्कल के बाहर से एक पॉइंट P है. तो पॉइंट P में जो दोनों टेंजेंट्स है, सर्कल के जो टेंजेंट्स है वो इंक्लिन होते हैं कितने एंगल पे, तो कि वो 60 डिग्री एंगल पे दोनों इंक्लिन होते हैं. मीन्स दोनों एक दूसरे इंटरसेक्ट दोनों एक दूसरे के होते हैं कितने एंगल पे, तो कि 60 डिग्री. तो हाउ कैन वी फाइंड दिस 60 डिग्री एंगल एट द पॉइंट P with the tangents? For that, first we understand how can we draw the 60 degree angle by inclining the tangents. For the solution, let me consider one circle. Just we want to draw P and we want to draw tangent to this circle such in the way that this angle between two tangent that inclined at point P is angle of 60 degree. यहाँ पे जो हमें P पर जो दोनों एंगल है वो जो टेंजेंट है, टेंजेंट दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे. कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? P पर. हमें पता है यार दोनों P पर इंटरसेक्ट करें तो P पर जो एंगल बनेंगे यहाँ पे वो एंगल कितना होना है? 60 डिग्री. तो वो कैसे कर सकते हैं? तो हम ऐसे इस तरह का हमें एक फिगर मिलेगा. तो कि
ये जो है यहाँ पे ओ क्यू एंड ओ आर तो दोनों रेडियस है किसकी, इससे सर्कल की दोनों रेडियस है। और मान लो कि पी क्यू और पी आर क्या है, दोनों के टेंजेंट्स है। तो इस तरह का हमें फिगर मिलेगा। अब यहाँ पर जो एंगल है वो 60 डिग्री हमें बनाना है। कितना बनाना है? 60 डिग्री। तो हम सर्कल्स में पढ़ चुके हैं कि इफ देर गिवन सच अ problem, if there gives such problem, then angle P and angle O are complementary angle. What is it? ये जो एंगल है P एंड O दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब इस तरह का कोई फिगर बने कि बाहर से एक पॉइंट है उसमें से इस तरह का एक फिगर बने, तो इस फिगर में जो कॉर्नर P और जो एंगल P और एंगल O है वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं कि जिस दोनों का सम हो ले है, दोनों की एंगल है उन दोनों का सम ले तो उसका सम जो है वो कितना, तो कि 180 डिग्री आए। कितना? 180 डिग्री आए तो उन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम कह सकते हैं। तो फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमें यहाँ पे 60 डिग्री का बनाना है। एंगल कितना बनाना है? 60 डिग्री। हमें पता है ये दोनों एंगल तो कितने हो गए? 90 डिग्री, क्योंकि ये जो पी क्यू है वो रेडियस को परपेंडिकुलर होता है। तो ये दोनों एंगल है वो 90 के हो जाएंगे। तो हमें ये एंगल 60 का बनाना है, तो यहाँ पे कितने का एंगल बनाना पड़ेगा? इन दोनों का सम 180 है। इन दोनों का सम कितना है? 180 है। तो अगर ये 60 है तो यहाँ पे कितना एंगल हमें बनाना पड़ेगा? तो कि 120 का। 120 मीन्स 120 डिग्री का यहाँ पे एंगल हमें बनाना पड़ेगा। तो for the complementary angles we know that such angle P plus angle O for any two angle P and angle O is equal to 180 degree. For that we have given that angle P is 60 degree. एंगल P कितना दिए गए? 60 डिग्री। तो हमें एंगल O कितना का बनाना पड़ेगा? एंगल O इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो मीन्स यहाँ पे हम जो है 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। और हमें पता है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे कितने का एंगल हम बनाएंगे? 90 डिग्री का। यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और तो इस हिसाब से हम जो है ये जो बाद में बचेगा, क्योंकि एक क्वाड्रेट्रियल शेप है तो हमें पता है कि क्वाड्रेट्रियल होता है उसके सारे के सारे एंगल होते हैं, उसका सम कितना होता है? क्यों? तो के 360 डिग्री। हमें पता है कि कोई भी ऐसा क्वाड्रेट्रियल शेप होता है तो उसके जो एंगल होते हैं वो एंगल का सम क्या आता है? चारों चार एंगल के पी क्यू ओ आर का सम कितना आएगा? तो कि 360 डिग्री। तो इस हिसाब से ये 90 का और ये 120 का, तो ये कितना का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। तो हम बाद में इसका जस्टिफिकेशन भी दे देंगे। तो फॉर दैट जस्ट वी हैव टू फर्स्ट कंस्ट्रक्ट the angle O of 120 degree, R 90 and Q 90, then automatically it will be P will be 60 degree. Let us do that. First we have to draw circle of given radius 3 सेंटीमीटर। तो हमने 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे जो रेडियस हमें कंस्ट्रक्ट करना है वो कंस्ट्रक्ट हमने कर लिया। अब तो के O पर हमें 120 डिग्री का एक एंगल बनाना है, जैसे हमने फिगर में देखा। फॉर दैट जस्ट वी टेक पॉइंट Q, जस्ट वी ड्रॉ रेडियस OQ। नाउ लेट वी वांट टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री हियर। फॉर दैट हम यहाँ पे एक रेडियस थोड़ी सी रेडियस लेके हम यहाँ पे एक ऐसा सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो सेमी सर्कल ड्रॉ किया और जो रेडियस हमने ली थी, जो ये सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए जो आपने रेडियस ली वो रेडियस आपको चेंज नहीं करनी है, उसको यहाँ पे रख के आपने जितने यहाँ रेडियस की जो ओको सेंटर लेके आपने जो ये रेडियस ड्रॉ की है ना, उस रेडियस से यहाँ पे पॉइंट रखे, यहाँ पे उसका एक पॉइंट रखे और फिर से यहाँ पे उसको हम ड्रॉ कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? तो हमें पता है कि अगर यहाँ से कोई यहाँ पे O में से और इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उनमें से अगर आप एक एंगल ड्रॉ करेंगे, वो एंगल कितना होगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। कितना डिग्री का होगा? 60।
तो ये 60 डिग्री है तो उसका हम डबल करें, अगर ये 60 डिग्री का है तो उसका हम दुगना करें तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। मीन्स ये जो रेडियस से हमने यहाँ पे आर्क ड्रॉ किया है, फिर से यहाँ पे पॉइंट लेके, ये जो आर्क पे यहाँ इंटरसेक्ट हुआ वहाँ पे पॉइंट लेके एक यहाँ पे हमें आर्क ड्रॉ करना है इस तरह से। हाँ, तो अगर ए जो है एंगल, यहाँ पे अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो ए एंगल जो बनेगा वो 60 का है, तो इस ए उसका दुगना हो गया, तो कितना हो जाएगा ये 120 का एंगल हो गया। तो अब यहाँ पे हम एक पॉइंट लेके इस तरह से एक रेडियस ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं हम आर, तो यहाँ पे क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, व्हाट इज क्यू ओ आर, तो यहाँ पे जो एक क्यू ओ आर है वो कितने का हो गया 120 डिग्री, 120 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये जो एंगल है वो 120 डिग्री का बन गया। अब हमें पता है कि 120 डिग्री का एंगल हो गया। अब यहाँ पे हमें जो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, यहाँ पे जो हम टेंजेंट्स ड्रॉ करने वाले हैं वो टेंजेंट इस रेडियस के साथ कितना 90 का एंगल बनाते हैं, कितने का 90 का। तो यहाँ पे मीन्स परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए अब यहाँ पे हम कितने का एंगल ड्रॉ करेंगे 90 का एंगल ड्रॉ करने। अब 90 का एंगल किस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो पहले हमने जैसे यहाँ पे रेडियस बनाई वैसे एक सर्कल ड्रॉ ले लेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। अब फिर से 60 एंगल के दो बनाने के लिए हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे, यहाँ से पॉइंट लेंगे और इसे एन आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एज वेल एज फिर से हम यहाँ पे पॉइंट रख के यहाँ पे एंगल, तो ये 120 का हो गया, एक 60 का। और तो इस तरह से जो आप इतना भाग है, ये जो एंगल है वो 60 का, तो फिर यहाँ से इतना एंगल, ए एंगल, ये जो एंगल बनता है जो ये यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ऐसे करके, ये जो एंगल बनता है यहाँ पे ऐसे, ये भी 60 का है, तो इतना एंगल 60 का, तो इसका हाफ कितना होगा, जो ये यहाँ पे ऐसे एंगल बनता है वो 60 का है, यहाँ पे ऐसे जो एंगल बनता है वो एक 60 का है, तो इसका हाफ कितना हुआ 30, तो 30 प्लस 60, ये जो 60 प्लस 30 कितना हो गया 90 हो गया। तो अब यहाँ पे इसका मीन्स यहाँ से हमें उसका आधा भाग लेना है, तो उस आधे भाग लेने के लिए पे ए पॉइंट और ए इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों में से एक आर्क ड्रॉ करेंगे सेम से विथ सेम रेडियस, इस तरह से यहाँ पे पॉइंट लेके और यहाँ से पॉइंट लेके। पॉइंट कहाँ से लेना है, ये जो दोनों आपने यहाँ पे आर्क ड्रॉ किए ना, वहाँ जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ से लेके यहाँ पे एक यहाँ पे आर्क ड्रॉ करना, इसको पॉइंट लेके यहाँ पे आर्क ड्रॉ। तो अभी ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला उसमें से क्यू में से एक हम यहाँ पे एक ऐसे, तो ये जो एंगल बन गया अब, तो ए 60 डिग्री हो गया और ए 60 था तो 60 का हाफ कर दिया, तो ये इतना एंगल कितना हो गया 30, इतना एंगल 30, और 30 प्लस 60 प्लस 30 कितना हो गया 90 हो गया ना। तो ये जो एंगल है वो कितना हो गया 90 का एंगल। तो हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जो रेडियस ओ क्यू है उस पे परपेंडिकुलर है, तो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो गया। तो इसी तरह से हम क्यू आर पे, कहाँ पे आर पे ऐसा एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और जो टेंजेंट है यहाँ से जो टेंजेंट यहाँ पे यहाँ से जो गुजरेगा वो यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा। तो लेट फॉर दैट पहले हम यहाँ पे पॉइंट लेके जो यहाँ पे जो आपने सेमी सर्कल ड्रॉ किया ना वही रेडियस है, रेडियस नहीं चेंज करनी हो, याद रखना। आपने जो ये आर्क को सेंटर लेके ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया है ना, वही रेडियस लेके आपको यहाँ पे पॉइंट लेके यहाँ पे आपको आर्क ड्रॉ करना है। वो इसी तरह से यहाँ से पॉइंट लेके फिर से यहाँ पे आर्क ड्रॉ करना है। और उन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम ऊपर की तरफ ऐसे दो आर्क को इंटरसेक्ट कराएंगे, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट उसमें से एक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो आपने देखा ना यहाँ पे दोनों जो टेंजेंट्स है वो एक, तो ये जो कॉर्नर हमें मिला है यहाँ पे वो कितना हो गया 90 डिग्री का हो गया। तो अब दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गए वहाँ पे, हम उसके कह देते हैं पॉइंट P। तो बाहर के एक पॉइंट से P से हमने दोनों टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, जो आप देख सकते हो कि वो दोनों परपेंडिकुलर है, किसको OQ एंड OR को, दोनों जो ये PR और PQ है वो दोनों परपेंडिकुलर, क्योंकि उसका एंगल कितना है 90 का है। तो अब आप देख सकते हो एक
क्वाड्रेटेरियल एक शेप है, ये क्वाड्रेटेरियल एक शेप है, एक चतुष्कोण बनाता है। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटेरियल के जो एंगल होते हैं उन सभी का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो ए 90 का, ए 90 का, ए 120 का, तो ये कितना हो जाएगा 60 का। तो ये एंगल जो हम यहाँ पे बनाया है वो कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का। तो इस तरह से हमने ऐसे दो एंगल ड्रॉ किए, दो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किए कि दोनों इंक्लिंड होते हैं कितने एंगल पे, तो क्या 60 डिग्री एंगल पे। तो लेट वी राइट द प्रोसीजर, कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर। हमने जो जो किया है वो हम लिखेंगे वन बाय वन। द टेंजेंट कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन द फॉलोइंग मैनर। फर्स्ट वी ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 5 रेडियस सेंटीमीटर विथ सेंटर O। उसके 5 सेंटीमीटर रेडियस है तो हम 5 सेंटीमीटर रेडियस से ड्रॉ करेंगे। टेक अ पॉइंट Q, व्हाट यू डू, टेक अ पॉइंट Q ऑन द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल एंड जॉइंट OQ। जो हमने रेडियस बनाया ना वो रेडियस जॉइन करना है। 3 पॉइंट, स्टेप नंबर 3, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू QP एट पॉइंट Q। अब यहाँ पे QP एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पॉइंट Q पे, जैसे हमने किया। ड्रॉ रेडियस OR मेकिंग एन एंगल 1 डिग्री 120 डिग्री, दैट इज 180 माइनस 60। वाई 180 माइनस 60? क्योंकि वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो P 60 का है तो हमें जो O पे जो एंगल बनेगा वो कितने का 180 डिग्री का बनेगा विथ OQ। ड्रॉ परपेंडिकुलर टू RP एट पॉइंट R। Now both the perpendiculars intersect at point P, as we can see in the figure. Therefore, PQ and P are the required tangents at an angle of 60 degree. अब जस्टिफिकेशन के लिए तो कुछ नहीं करना हमें, तो कि ये जो फिगर है उसमें ए 120 का, ए 90 का, ए 90 का, तो ये जो क्वाड्रेटेरियल है उसका जो सभी एंगल है उसका सम 360 डिग्री होता है। तो ए 90 है, 90 है, 120 है, तो ये कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। जस्टिफिकेशन, द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैन बी जस्टिफाइड बाय द प्रूविंग एंगल QPR is equal to 60 degree by our construction OQP means angle Q is 90, ORP means angle R is 90, and QOR means angle O is 120 degree. We know that the sum of all interior angles of quadrilateral is equal to 360 degree. What quadrilateral is 360 degree? So we take the sum of this 4 angle, OQP, QOR angle, ORP angle, QPR is equal to 360 डिग्री। यहाँ पे 90, 120, 90 जो यहाँ पे हमने लिया है, तो QPR कितना हो जाएगा उस हिसाब से एंगल QPR मीन्स जो यहाँ पे एंगल बनता है वो कितना 60 डिग्री का हो गया, हैज़ दी जस्टिफाइड। सो बाय दिस वे यू कैन सोल्व exercise number 11.2. There is given example number 5. There is given example number 5. Solve it by yourself, and if you can find any doubt then you can discuss it with me, that we can solve it once again.